श्री गुरु चरण कमलेभ्य नमः। समस्त भक्तवृंद, विद्वत समाज, अनंत भक्तमंडলী सबाइके आमार हार्दिक अभिवादन। भक्ति योगाश्रम থেকে কথাগুলো আপনাদের জন্য বলা হচ্ছে, মনে রাখবেন। কালকে লাস্ট টিকিট কাটা হবে। বৃন্দাবন থেকে যারা ফিরবেন, অর্থাৎ গঙ্গোত্রী হয়ে প্রথমে আমাদের রাম লালাকে দর্শন করে ঋষিকেশ, হরিদ্বার, নীলকণ্ঠ, গঙ্গোত্রী, হরিদ্বারের সর্বত্র এবং কঙ্খল আদি দর্শনের পর ব্রজধাম পরিক্রমা, গীতা মহাযজ্ঞ হবে 4 তারিখে। 5 তারিখে রওনা হয়ে 6 তারিখে আপনারা কলকাতায় পৌঁছাবেন। তাহলে এই 6 তারিখে ফেরার যে টিকিট সেটা কিন্তু কালকে হবে। সব লোকের রিজার্ভেশন আগামী কাল হয়ে যাবে। সকালে আমি চলে যাব কলকাতা টার্মিনালে, সেখানে কিছু বলার চেষ্টা করব। কিন্তু এখন আপনাদের বলে দিই, 21শে জুলাই দীক্ষার জন্য যারা নাম লিখেছেন তারা প্রস্তুতি নেবেন, আর যারা নেন এখনো প্রস্তুতি নেননি, দীক্ষা নিতে চান, তারা নেবেন। আর বৃন্দাবনে আপনারা যারা বাংলার থেকে যাচ্ছেন, বৃন্দাবনে কিন্তু আমাদের আশ্রমে অনায়াসে ঘর পাবেন আপনারা। ভক্তি যোগাশ্রম, চৈতন্য বিহার, এখানে আমাদের খুব ভালো ঘর, এসি ঘর, নন এসি ঘর সব পাওয়া যাবে। নন এসি ঘর 10টা পাবেন। সেই জন্য আপনারা যারা বাংলা থেকে যাবেন, হল আছে, হল ভাড়া পাবেন, সব কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। আর গেস্ট হাউস রয়েছে আমাদের, সেটা অবশ্য লিজে দেওয়া, সেটা আপনাদেরই কন্ট্যাক্ট করে নিতে হবে। আমরা ওই ঝামেলায় পড়তে চাই না, কারণ যারা লিজে নিয়েছে তারা কি ভাড়া দেবে, নেবে না নেবে সেটা তাদের ব্যাপার। সেই ব্যাপারে আপনাদের জানাচ্ছি যে বৃন্দাবন পরিক্রমায় এবারে 4 তারিখে গীতা মহাযজ্ঞ, 5 তারিখে রিটার্ন, 6 তারিখে কলকাতা পৌঁছাবে। দেখুন একটা কথা, যে মানবের চেতনা নিরন্তর ডিস্টার্ব হয়ে চলেছে। মানব নিরন্তর অশান্ত, আর আমরা এই অশান্তিগুলো ভোগ করি অনেক সবসময় দেখবেন বুদ্ধির অভাবে। যে বুদ্ধিটা যে সময় যে কাজে লাগানো দরকার, এক তো ধৈর্য দরকার, মনের একাগ্রতা দরকার, ঈশ্বর প্রণিধান দরকার। ধৈর্য, একাগ্রতা, ঈশ্বর প্রণিধান, শান্ত ভাব। এই জন্য প্রশান্ত আত্মা, গীতায় আমাদের গীতা দেবী, মনোরঞ্জন গীতা দেবী রোজ গীতা পড়ে। এখন তো মনোরঞ্জন বৃন্দাবনে কাজ করছে, বৃন্দাবনে চলে গেছে বুধবারে। তো প্রশান্ত আত্মা বিগত ভীর, সকালে পড়ছিলে মনে আছে তো? প্রশান্ত আত্মা বিগত ভীর। যিনি প্রশান্ত আত্মা, তার কিন্তু কোনো ভয় থাকে না, সে কোনো কিছু নিয়ে ভয় করে না। বিগত ভীর মানে ভয় যার বিগত হয়েছে, বিশেষ রূপে ভয় চলে গেছে। প্রশান্তাত্মা বিগত ভীর ব্রহ্মচারী ব্রতে স্থিত মন সংযম্য মচ্চিত্তযুক্ত আসিত মৎপরঃ। তাহলে কি সুন্দর কথা দেখুন। যিনি, যার চিত্ত প্রশান্ত, তরঙ্গ রহিত, ভেতরে কোনো ক্ষোভ যিনি রাখেন না, ভেতরটাকে শান্ত রাখেন, তার কোনো ভয় নেই। কারণ পৃথিবীতে সব থাকবে, দুষ্ট লোক থাকবে, ভালো লোক থাকবে, সৎ থাকবে, অসৎ থাকবে, অন্ধকার, আলো, সবকিছু প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয় কালের আবর্তনে। কালের ডারউইনের বিবর্তনবাদকে দেখতে পাবেন, নিরন্তর পরিবর্তিত হচ্ছে, কাল আবর্তিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। काल आवर्तित हो रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कभी अंधेरा आएगा, कभी प्रकाश आएगा, कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ बुरा होगा, कोई नहीं रोक सकता। जो होनी है वो अनहोनी नहीं, जो अनहोनी वो होनी नहीं, जो होनी है वो चुकनी नहीं, जो होनी है उसे हम रोक नहीं सकते, जो अनहोनी वो होनी नहीं। इसलिए वृंदावन में हमारा जो गेस्ट हाउस है वो केशवानंद पैलेस है। वहां पर जाकर के आप लोग गेस्ट हाउस का आनंद ले सकते हैं। सारे कमरा स्पेशल रूप से बना हुआ है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है केशवानंद गेस्ट हाउस में और केशवानंद पैलेस में। और भक्ति योगाश्रम उसके सामने ही है, जहां आपको कम भाड़े में आराम से बेड मिल जाएगा और 4 आदमी एक कमरे में आराम से ठहर सकते हैं। इसलिए सभी प्रकार का सुविधा वृंदावन में उपलब्ध है।
आप लोग रह सकते हैं। और इसको जीवन में समझ लीजिए कि प्रशांत आत्मा, हमें प्रशांत रहना है, माने अंदर से कोई तरंग नहीं होना है, उद्विग्न नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है, अशांत नहीं होना है, शांत प्रशांत। तो प्रशांत रहना चाहिए। आत्मा में जो प्रशांत है उसका कोई भय नहीं रहता, वो डरता नहीं है किसी से भी, किसी भी वस्तु से। ब्रह्मचारी प्रतिष्ठिता, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य कॉन्फिडेंस देता है। जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करे, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, गृहस्थ क्या निरंतर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेगा, लेकिन गृहस्थ को भी अपने ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए। गृहस्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास किए बिना, गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं उपस्थित हो सकती है। भोग में एक नियम होना चाहिए, इसलिए ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित। देखिए एक बात आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी देखा आपने ये सूरजपाल जो भोले बाबा के नाम से या नारायण साकार हरि के नाम से जो बोले हम स्वयं प्रकट हुए हैं, जो कि पुलिस में नौकरी करता था। अभी इन बंदरों का ऐसे प्रवृत्ति क्यों होती है, इसको ध्यान दीजिए। ये क्यों होती है? जो लोग बचपन से गुरु सेवा करते हैं, जो बचपन से साधना करते हैं, जैसे हम लोग गुरु के चरण में आ गए 11 साल की उम्र में। अभी मेरा उम्र 67 साल हो रहा है, तो 67 साल मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 56 इयर्स आश्रम के जीवन में व्यतीत किया। सारे भारतवर्ष में धर्म का प्रचार किया, लोगों के कल्याण के कार्य में जीवन को लगाया, और सारे भाग्य का विचार रोज करते हैं। कभी कभी ऑनलाइन दे देते हैं, कभी नहीं देते। अभी भी दुर्गापुर से लोग आए थे, भाग्यों का विचार अभी भी किया, लेकिन फिर भी उसको ऑनलाइन नहीं दे पाए क्योंकि यहाँ कोई इस समय तैयार नहीं था। तो इसलिए आपको ये कहना है कि जो लोग बचपन से साधना नहीं करते वो धूर्त होते हैं, कपट होते हैं। उन लोगों को वो बोले हम नारायण साकार, और छल करते हैं, चक्र दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं, ऐसे कैमरा के द्वारा दिखा के लोगों को छलते हैं, ठगते हैं। ऐसे धूर्त लोगों के द्वारा प्रताड़ित होने वाले लोग, उस दिन 123 लोगों की मृत्यु हो गई। सोच लीजिए कैसे बदमाश है ये सूरजपाल, जो अपने नाम को साकार, नारायण साकार हरि नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपने आप नाम लिया और शिष्यों को कह दिया कि मैं भगवान हूं, और जो दूध में नहाता है वही दूध का खीर बना के लोगों को पिलाता है, उस दूध से सुबह नहाता है। कैसा बदमाश आदमी है, और कहता है ये नल का पानी पीने से ठीक हो जाएगा। अभी खुद खबर में देखा गया कि वो काला जामुन खा रहा है, क्यों? उसका शुगर और प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो काला जामुन शुगर के लिए। तो ये तो ठीक है, बीमारी तो सबको हो सकता है, लेकिन स्वयं को भगवान बोलने वाला अगर वो ऐसा बीमार हो तो फिर कैसा लगता है? आपको अच्छा लगता है? हमको अच्छा लगेगा। तो इसलिए जीवन में इन सारी बदमाशों के चक्कर में कभी ना पड़े, और बदमाशों के चक्कर में जीवन को व्यतीत ना करें, और प्रशांत आत्मा हो जाइए। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें, व्रते स्थितः, व्रत परायण होइए। वेद में भी कहा गया है, सब व्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। भद्र बोलो, व्यवहार करो, भद्र व्यवहार, भद्र दृष्टि, भद्र चेतना, भद्र भाव को लेकर के जीवन में चलो। इसलिए ब्रह्मचर्य, मन संयम्य, और मन को कंट्रोल में करो। युक्त आसित मत परा, मन संयम्य मत चित्त। तुम्हारा जो चित्त है, माने जो चिंताएं, जहां पर चिंता होती है, वो चिंता को मुझसे जोड़ दो। चिंता भगवान का करो, चिंतन करो, चिंतन मनन मंथन भगवान का करो, और मुझसे युक्त हो करके, मत परायण हो करके मेरे साधना में जीवन को अर्पित करो। ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, आप हिंदी से बोलना चाहेंगे कि क्योंकि हिंदी में बोलने से ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोग्राम सबके लिए समझने में सुविधा होगी। हम चाहेंगे कि हिंदी में बोले, बांग्ला में थोड़ा बहुत बोले, हिंदी में ज्यादा बोले। नमस्कार, आप सब इस प्रोग्राम को देखें, हिंदी में ही हम प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। ओम शांति।